ઓમ શાંતિ. આજના સુંદર મજાના આધ્યાત્મિક કાર્યક્રમની શરૂઆત વિશ્વરક્ષક પરમાત્માની સ્મૃતિથી કરીશું. પરમાત્માની સ્મૃતિ એ આપણા મનને શાંત અને શીતળ બનાવે છે. પરમાત્માની સ્મૃતિથી કરેલ કાર્યની અંદર સફળતા પ્રાપ્ત થાય છે અને જીવન પરિવર્તન કરવા માટેના દૃઢ સંકલ્પ પણ આપણે કરી શકીએ છીએ. તો ચાલો 2 મિનિટ માટે આપણે સૌ પ્રભુ પિતાને યાદ કરીએ. ઓમ શાંતિ. વિશ્વના પ્રત્યેક મનુષ્ય આત્માઓની આત્મ ઉન્નતિ થઈ શકે એના માટે બ્રહ્માકુમારી વિદ્યાલયની અંદર અલગ અલગ ક્ષેત્રોના અલગ અલગ વિંગ્સની રચના કરવામાં આવેલી છે. જેમ કે સોશિયલ વિંગ, મહિલા વિંગ, મેડિકલ વિંગ. એ જ રીતે આપણા દેશની રક્ષા કરતા જવાનોની આત્મ ઉન્નતિ, આત્મરક્ષાના કાર્યક્રમો થઈ શકે એના માટે એક સુરક્ષા વિંગની રચના કરવામાં આવી છે. આ સુરક્ષા વિંગની રચનાને 25 વર્ષ પૂરા થયા છે. એના ઉપલક્ષની અંદર 12 માર્ચથી 30 માર્ચ સુધી સમગ્ર ગુજરાતની અંદર સુરક્ષા વિંગ દ્વારા એક સુંદર મજાનું અભિયાન કાઢવામાં આવ્યું છે. આ સુરક્ષા વિંગ આપણા ભારત દેશની રક્ષા કરતા ત્રણેય પાંખ જે છે, ચાહે નૌકાદળ હોય, હવાઈ દળ હોય, ભૂમિદળ હોય, પ્રત્યેક જવાનોની અને આપ સર્વ જે દેશની અંદર રક્ષા કરી રહ્યા છો, આપ સર્વની આત્મ ઉન્નતિ, આત્મરક્ષાના કાર્યક્રમો આ સુરક્ષા વિંગ દ્વારા થઈ રહ્યા છે. આજે આપને ત્યાં પણ એક સુંદર લક્ષ્ય સાથે આ અભિયાન આપની વચ્ચે પહોંચી ચૂક્યું છે. આ કાર્યક્રમની અંદર આપ સર્વનું બહુ જ દિલથી અને પ્રેમથી હૃદયના ઉદ્ગાર પ્રગટ કરશે આદરણીય રાજયોગિની બ્રહ્માકુમારી તૃપ્તિબેન. હા, પુષ્પોથી સ્વાગત કરી દઈશું. એમના સ્વાગત પ્રવચન પહેલાં સ્ટેજના સર્વ મહાનુભાવોનું પુષ્પોથી સ્વાગત કરવામાં આવશે. સર્વપ્રથમ આજના કાર્યક્રમના મુખ્ય વક્તા આદરણીય સ્વામિનાથનભાઈજીનું પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત કરશે ડીવાયએસપી સાહેબ અનિલ સાહેબ. આદરણીય તૃપ્તિબેનનું પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત કરશે પીઆઈ સાહેબ બામણિયા સાહેબ. આપણે સૌ કરતલ ધ્વનિથી સર્વનું સ્વાગત કરતા રહીશું. આદરણીય ભ્રાતા વિનયભાઈ નિવૃત્ત ડીવાયએસપી, જેમનું સ્વાગત કરશે પીઆઈ ગામિત સાહેબ. આદરણીય બ્રહ્માકુમારી અસ્મિતાબેન, જેમનું સ્વાગત કરશે પીઆઈ સાહેબ કદમ સાહેબ. પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત થયા બાદ શબ્દ પુષ્પથી બેનનું કર્યું ને? હા, શબ્દ પુષ્પથી સ્વાગત કરશે આદરણીય રાજયોગીની બ્રહ્માકુમારી તૃપ્તિબેન. બ્રહ્માકુમારી તૃપ્તિબેન સુરત, વરાછા અને એની આસપાસના 17 જેટલા સેવા કેન્દ્રનું સફળ સંચાલન આપ કરી રહ્યા છો. આપ બ્રહ્માકુમારી સંસ્થાની ગ્રામ વિકાસ પ્રભાગના નેશનલ કોઓર્ડિનેટર છો. સર્વને શબ્દ પુષ્પથી સ્વાગત કરશે આદરણીય રાજયોગીની બ્રહ્માકુમારી તૃપ્તિબેન. ઓમ શાંતિ. આપ સૌ પ્રેમથી બોલો ઓમ શાંતિ. સરસ આમ હસતા ચહેરે બોલો ઓમ શાંતિ. હસવાથી હળવાશ આવે અને હળવાશ એ આપણો સ્વીકારનો માર્ગ એ ખોલી આપે. આજે આપણે બહુ જ સારી પ્રેરણાદાયક
આધ્યાત્મિક અને જીવન ઉપયોગી શક્તિશાળી વાતો સાંભળવાના છીએ. એટલે તમે જેટલા હળવા હશો ને એટલી સરસ રીતે બધી જ આધ્યાત્મિકતાને એક્સેપ્ટ કરી શકશો. ખૂબ જ સરસ મજાનું આજનું દ્રશ્ય છે. ગૌરવ અને ગર્વ અનુભવ થાય એવી આપ સૌની ઉપસ્થિતિ છે. આટલી વિશાળ સંખ્યામાં આપ સર્વ દેશના રક્ષકોને જોઈ અને આનંદ પણ થાય છે. ફક્ત ગર્વ નહીં, પણ અંદરથી એક આનંદ છે કે વાહ મારો દેશ, કે જે દેશના આવા સરસ મજાના રક્ષક ભાઈઓ અને બહેનો કેટલી સરસ રીતે પોતાની ફરજ અદાઈ કરી રહ્યા છે. તો આપ સૌને માટે બ્રહ્માકુમારી સંસ્થાની સિક્યુરિટી સર્વિસ વિંગ દ્વારા જે આજે અભિયાન આવ્યું છે એના પ્રેરણા સ્ત્રોત પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા શિવ, જે આપણી સૌ આત્માઓનો પિતા છે. આપણે બધાને બે પિતા છે, એક શરીરનો બાપ અને બીજો અંદર બેઠેલી આત્માનો પિતા. આજે પરમાત્માનું સૌથી પહેલાં આપણે આ સભાની અંદર સ્વાગત કરીએ, કેમ કે તે વિશ્વ રક્ષક છે. જોરદાર તાલીઓથી પ્રભુને વધાવીએ, પરમાત્માની ઉપસ્થિતિનો અનુભવ કરીએ. ત્યારબાદ આજે આપણને સૌને જેમના દ્વારા આધ્યાત્મિકતાનો રસપાન અને જીવન જીવવાની એક સ્ટ્રેસ ફ્રી પદ્ધતિ શીખવા મળવાની છે, તેવા એક વૈશ્વિક વક્તા, હું આદરણીય બ્રહ્માકુમાર સ્વામીનાથનભાઈને વૈશ્વિક વક્તા એટલા માટે કહું છું કે જ્યાં પણ તેઓ જાય છે દરેકના દિલને સ્પર્શે એવી તેમની અભિવ્યક્તિ છે. બાલ્યકાળથી જ તેઓ કુમાર છે અને બહુ જ સારી એમણે એચિવમેન્ટ પ્રાપ્ત કરી છે. પણ છતાંય જે વાણીનો રસાસ્વાદ આજે આપણને સૌને કરાવવાના છે તેવા પ્રોફેસર ઈ.વી. સ્વામીનાથનજીનું જોરદાર તાલીઓથી આપણે સૌ અભિવાદન, સ્વાગત, અભિનંદન કરીએ. આપણા સૌની વચ્ચે પધારેલા ડીવાયએસપી સાહેબ અનિલ પટેલ સાહેબ, કે જેમની ઉપસ્થિતિ જ દરેકની અંદર એક નવું ચાર્જિંગ આપી રહી છે. એમની હાજરીથી, એમના આગમનથી જે વાતાવરણની અંદર એક રોનક ફેલાય, તો એવી વિશેષ પ્રતિભા અનિલ સાહેબને પણ આપણે તાલીઓના નાદ સાથે આવકારીએ, અભિનંદન આપીએ. નિવૃત્ત ડીવાયએસપી બ્રહ્માકુમાર વિનયભાઈ, જેઓ 12મી માર્ચથી આ સેવામાં જોડાયેલા છે. આખા ગુજરાતની અંદર આ અભિયાન ગામે ગામ, શહેરે શહેરમાં જઈ અને આધ્યાત્મિકતાની ચળવળ સુરક્ષા પ્રભાગના આપ સર્વ ભાઈઓ અને બહેનોમાં લાવી રહ્યા છે. તો વિનયભાઈને પણ આપણે તાલીઓથી આવકારીએ, સ્વાગત કરીએ. બ્રહ્માકુમારી અસ્મિતાબેન, જેઓ આ અભિયાન સાથે પણ જોડાયેલા છે અને બ્રહ્માકુમારી જીવન પોતાનું આધ્યાત્મિકતાના માર્ગે સમર્પિત કરી અનેકોને માટે પ્રેરણારૂપ છે. બ્રહ્માકુમારી અસ્મિતાબેનનું પણ સ્વાગત છે, અભિનંદન છે. આ સાથે બ્રહ્માકુમારી સંસ્થાના અનેક તપસ્વી ભાઈઓ અને બહેનો કે જેઓ સંપૂર્ણ નિર્વ્યસની, ચરિત્રવાન, પવિત્રતાને જીવનમાં અપનાવી અને દેશને સાચું સુરક્ષા કવચ આપી રહ્યા છે, તેવા બ્રહ્માકુમારી સંસ્થાના સર્વ ભાઈઓ અને બહેનોને પણ આપણે સૌ તાલીઓથી વધાવીએ, આવકારીએ. હવે આપના ઘરમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. આપ એસઆરપી કેમ્પના નિવાસી સર્વ બહેનો અને ભાઈઓની ઉપસ્થિતિથી જ આ પ્રોગ્રામ શક્ય બન્યો છે. તો આપ સર્વને પણ હું સ્વાગત કરું છું, આવકારું છું. ઓમ શાંતિ. સ્વામીનાથનભાઈજી, આપણે સૌ એક વખત જોરદાર કરતલ ધ્વનિથી એમનું સ્વાગત કરી લઈએ. આપ લાઈફ કોચ, ટ્રેનર તેમજ સફળ શિક્ષક તરીકેની સેવા પણ કરી. આપ કાઉન્સેલર તેમજ મૂલ્ય આધારિત સમાજ બનાવવા માટે પણ એક સલાહકાર તરીકે સેવા આપી રહ્યા છો.
आप भारतीय सेना, नौकादળ, वायुसेना, BSF, SRPF, NSG, SVI જેવા તમામ લશ્કરી, અર્ધલશ્કરી અને પોલીસ દળો, રાજ્ય પોલીસ દળો તેમજ કેટલીક વિદેશી પોલીસ એકેડમી માટે પણ અનેક કાર્યક્રમો આયોજિત કરેલ છે. આપ ભારત, પાકિસ્તાન, ચીન સરહદ પર SBS સિયાચીન બેટલ સ્કૂલના વિશ્વના સૌથી ઊંચા યુદ્ધ ક્ષેત્રમાં પણ તાલીમ લેવાનું એક અનોખી ગૌરવ આપે પ્રાપ્ત કરેલ છે. આપ અવેકનિંગ તેમજ પીસ ઓફ માઇન્ડ ચેનલ પર અનેક ટેલિવિઝનના ટોક શોમાં પણ આપ ઉપસ્થિત રહ્યા છો. આપે IIT ખડગપુર, મુંબઈ, કાનપુર, દિલ્હી, હૈદરાબાદ તેમજ IIM કાલિકટ ખાતે વિદ્યાર્થીઓને પણ આપે તાલીમ આપેલ છે. આપે PhDના વિદ્યાર્થીઓ માટે ભાવનાત્મક રીતે સંશોધન પણ આપે કર્યું છે તેમજ માર્ગદર્શન પણ આપી રહ્યા છો. આપ છેલ્લા 40 વર્ષથી રાજયોગનો નિયમિત અભ્યાસ કરી રહ્યા છો. આપણે સૌ ખૂબ જ ધ્યાનથી, દિલથી સાંભળીશું. આદરણીય સ્વામીનાથનભાઈજી. आप सबका आज के इस सत्र में मैं बहुत दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं. और आज जो हमारा पहला विषय है तनाव प्रबंधन. वैसे आप सभी यहाँ पर पुलिस फोर्सेस सैनिक हमारे सामने बैठे हैं. आप बेसिकली पुलिस फोर्सेस का मेन ड्यूटी है कि समाज में शांति और अमन स्थापन करना. यस और नो? यस अनिल सर? यस. तो समाज में शांति और अमन जैसे आपके आने से हो जाता है, वैसे ही ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का भी यही लक्ष्य है कि समाज में शांति हो, अमन हो. और इसके लिए आपने देखा 25 वर्ष की एक बहुत सुंदर यात्रा हमारी रही. और मेरा ये सौभाग्य रहा है कि भारत के हर फोर्सेस तक उनके जीवन में जो तनाव है वो समझना और तनाव का क्या निवारण है, समाधान है, उसके प्रति जो स्टडी है, रिसर्च है, वो हम आपके सामने आज रखेंगे. माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक अनुभव के साथ शुरू करना चाहूँगा. बहुत वर्ष पहले सिक्योरिटी सर्विसेज विंग को बुलाया गया था NSG हेडक्वार्टर्स में. NSG का फुल फॉर्म हम सभी को पता है, इट्स नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, इसको ब्लैक कैट कमांडोज कहते हैं. इसका हेडक्वार्टर्स दिल्ली से 20 किलोमीटर दूर मानेसर में है. तो वहाँ पे जब हम सेशन लेने के लिए गए तो हमें एक ब्रिगेडियर साहब मिले. उन्होंने हमें एक बहुत अच्छी बात सिखाई. उन्होंने कहा, स्वामी भाई, जब भी हमारी टीम को एक डिस्ट्रेस कॉल, एक इमरजेंसी कॉल मिलता है तो हम उनको 4 मिनट का टाइम देते हैं. और फिर उन्होंने मुझसे पूछा, आपको पता है हम 4 मिनट का टाइम क्यों देते हैं? हमने कहा, सर जी हमको तो नहीं पता, आप बताइए. तो उन्होंने कहा, हम 4 मिनट का टाइम इसलिए देते हैं क्योंकि 4 मिनट के अंदर ये कमांडो स्वयं सशक्त होना ज़रूरत है. तो हमने पूछा, 4 मिनट के अंदर ये क्या करते हैं? बोले, 4 मिनट के अंदर ये हेलमेट पहन लेते हैं, ऐसे चश्मा पहनते हैं जिससे उनको रात्रि दिखाई दे, बुलेट प्रूफ आर्मर पहन लेते हैं, ऐसे जूते पहनते हैं जिससे वो तेज़ी से भाग सकते हैं, द कम्युनिकेशन किट्स एंड गैजेट्स. और ब्रिगेडियर साहब ने हमें इतनी अच्छी बात बताई, एक डायलॉग उन्होंने हमें समझाया. और हम चाहेंगे कि हमारे स्टेट रिज़र्व के जितने भी हमारे भाई बहनें सामने बैठे हैं, घर में जाकर आप अपने बच्चों को ये ज़रूर बताना, क्योंकि आपके तनाव के साथ साथ आपके परिवार के तनाव और उनकी सुरक्षा के लिए भी, है ना, ये शिक्षा बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो ब्रिगेडियर साहब ने हमको कहा, हम बोलते हैं, हम चाहेंगे आप मेरे पीछे रिपीट करें. ओके अनिल सर, ये रिपीट कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं. तो सभी बोलिए, हम. अरे भाई, सभी पुलिस फोर्सेस है ना, थोड़ा शक्ति से बोलो ना. वो सिविलियंस की भाषा नहीं होनी चाहिए, है ना. आप लोग तो सैनिक हो ना, जवान हो, तो थोड़ा जोर से बोलिए. हम दूसरों की रक्षा तभी कर सकते हैं जब हम डैश डैश डैश. वाह, कितनी अच्छी ऑडियंस है सर आपकी, है. जैसे स्वामी भाई बोलेंगे वैसे का वैसे ही हम बोलेंगे. हेलो, वो था रिक्त स्थान पूर्ति करो, फिल अप द ब्लैंक्स, डैश डैश डैश. फायरिंग कर रहे थे आप सभी.
हम दूसरों की रक्षा कब कर सकते हैं? जब हम बोलिए, हाँ, जब हम स्वयं सुरक्षित हैं। तो ये बोलना चाहिए ना, डैश 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 क्यों बोला? अभी हम फिर से बोलते हैं, कोई भी डैश 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 नहीं बोलेगा, बोलेंगे जब हम स्वयं सुरक्षित हैं। ठीक है, सभी बोलिए, हम दूसरों की रक्षा तभी कर सकते हैं जब हम डैश डैश डैश, हाँ, स्वयं सुरक्षित हैं। ये आपके लिए नहीं मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये तो आप जानते हैं। ये घर में जाकर आप अपने बच्चों को ज़रूर बताना, ठीक है? और ख़ास कर तनाव प्रबंधन के लिए ये डायलॉग बहुत इम्पॉर्टेंट है। तनाव प्रबंधन पर DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत सुंदर अनुसंधान किया है, राइट? और उन्होंने तनाव का एक सुंदर सा फॉर्मूला बताया है, तनाव प्रबंधन का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला। चाहे आप यूनिफॉर्म फोर्सेस हो, चाहे सिविलियंस हो, चाहे छोटे बच्चे हो, माता पिता हो, बुजुर्ग हो, तनाव का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। वो कहते हैं स्ट्रेस इज डिफाइंड एज आउटर प्रेशर डिवाइडेड बाय इनर कोपिंग एबिलिटी। एक होता बाहर का प्रेशर, दूसरा होता है हमारी आंतरिक शक्ति। और अगर इस समाज में किसी को भी तनाव हो रहा है, उसका पीछे एक ही कारण है, जब बाहर का प्रेशर आपकी आंतरिक शक्ति से जब बढ़ जाती है। 2-2.5 साल पहले कोविड आया था, छोटा सा अदृश्य वायरस था, वो पूरे समाज में व्याप्त था। कुछ लोगों को उस वायरस के कारण मृत्यु हो गई, कुछ लोग बड़े आराम से मुस्कुराते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकल गए। वायरस एक ही था, लेकिन किसी को उसने अटैक किया, कोई व्यक्ति सुरक्षित हो गया। और उस समय याद है डॉक्टर्स ने हमको बहुत ज़्यादा एक बात बताई, प्रतिरोधक शक्ति, आंतरिक प्रतिरोधक शक्ति, इनर इम्यूनिटी पावर, राइट? तनाव के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए तनाव कब हो रहा है, प्रेशर क्या होता है वो हम देखते हैं। आप जैसे बीच में हैं और बहुत सारे प्रेशर आते हैं, क्योंकि आप बुलेट की भाषा समझते हैं इसलिए हमने बुलेट को बताया यहाँ पर। सबसे पहला है अदर पीपल्स बिहेवियर, दूसरे लोगों का व्यवहार, प्रेशर है। अचानक कहीं दंगा हो गया, स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स को लेकर गए। अचानक इलेक्शंस हो गया, वहाँ पर आपको भेजे। एक नई जगह है, वहाँ के लोग किस तरह से व्यवहार करें कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन आपको वहाँ शांति और अमन की स्थापना करनी है, राइट? अच्छा, ये तो पब्लिक की बात है। आपके कलीग्स में कौन किस तरह से व्यवहार कर रहा है कोई कंट्रोल नहीं है। आपके रिश्तेदार, आपके परिवार के सदस्य। और रिसर्च कहता है ये तनाव का एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा है चैलेंजिंग वर्क एटमॉस्फेयर, चुनौतीपूर्ण आपका कार्य है, राइट? वेरी चैलेंजिंग, वो तो आप जानते ही हैं। तीसरा है गवर्नमेंट पॉलिसीज। कभी कभी हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए सुविधा दे, ये करे वो करे, लेकिन गवर्नमेंट का पॉलिसीज है, आपका और हमारा इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन वो प्रेशर बिल्टअप ज़रूर करता है। चेंजिंग एनवायरनमेंट, अचानक ट्रांसफ़र हो गया, राइट? प्रकृति के अंतर से लेकर परिवार का अंतर भी हो जाता है, राइट? कहाँ पर आप बहुत गर्मी में थे, अचानक ठंडी में भेज दिया। अब बच्चों की पढ़ाई है, उनका सेटलमेंट है, बहुत हालत ख़राब। नेक्स्ट, पिछला अनुभव दोस्तों, अगर वो अनुभव इतना सुखद ना हो तो। और लास्ट है अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस, परिवार और बच्चों की एक्सपेक्टेशंस, आपकी खुद की अपेक्षाएं। सारे लोग गर्मी की छुट्टी मना रहे हैं, वेकेशन प्लान कर रहे हैं, लेकिन आपको छुट्टी नहीं मिल रही है। कितनों को इस बात का तनाव होता है? मुस्कुराते हुए हाथ उठाएं। वाह सर, किसी को तनाव नहीं होता है, बहुत अच्छा, सब मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन आपको तनाव नहीं होता होगा, जाकर पत्नी को जाके बोलना यस। और बच्चों को देखना, नेचुरली तनाव होता है। अब इतने सारे बुलेट हिट कर रहे हैं, तो माय डियर स्वीट फ्रेंड्स, देखें हमारी हालत क्या हो गई, आउच। अब इतने सारे बुलेट्स हिट कर रहे हैं, इससे बचने का 2 उपाय है। सबसे पहला उपाय है डॉड्ज द बुलेट्स, मतलब बुलेट आ रहा है, हम इधर उधर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यह पहला ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन है बुलेट प्रूफ आर्मर पहन ले। बताइए दोस्तों, सही ऑप्शन कौन सा, पहला या दूसरा? अरे कुछ बोलते ही नहीं है, पहला या दूसरा? थोड़ा जोर से बोलिए। वाह,
आप तो बड़े बुद्धिमान निकले। करेक्ट, एकदम सही जवाब दिया आपने। यू आर राइट। क्योंकि कहाँ तक डॉज करोगे, कब तक डॉज करोगे? कोई ना कोई बुलेट कहीं ना कहीं हमें हिट कर जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, आपने जो बोला एकदम राइट बोला। बुलेट प्रूफ आर्मर पहन लें, कहीं से भी बुलेट आए आप सुरक्षित। और ये बुलेट प्रूफ आर्मर पहनना कोई स्थूल बुलेट प्रूफ की बात नहीं कर रहा हूं। बुलेट प्रूफ आर्मर पहनना मतलब स्व सशक्तिकरण करना। इसलिए हमारा कैंपेन का नाम ही है स्व सशक्तिकरण से राष्ट्र सशक्तिकरण। ठीक है, ये बहुत बहुत ज़रूरत है। अब कैसे पता चलेगा हम स्व सशक्तिकरण हैं? हम जितना तनाव मुक्त रहें, हमारा मन जितना शांत और स्थिर है, हमारा मन कितना प्रसन्न है। तो आप सभी को तनाव है या नहीं, स्वामी भाई को कैसे पता चलेगा? आपके चेहरे से। फेस इज द इंडेक्स ऑफ योर माइंड। आपका चेहरा आपका मन का दर्पण है। तो आपका चेहरा कैसा होना चाहिए? मुस्कुराता हुआ। हम बहुत वर्ष पहले जब मुंबई यूनिवर्सिटी में हम प्रोफेसर थे तो हमने ये फ़ोटो हमारे विद्यार्थियों को दिखाया। तो एक ने खड़े होकर कहा, सर ये आपका बचपन का फ़ोटो है क्या? हमने कहा आपको कैसे पता चला? बोला सर उनका हेड टॉप व्यू और आपका हेड टॉप व्यू सेम है। कहते एक छोटा बच्चा दिन में 300 बार मुस्कुराता और खुश होता है। कितनी बार? जोर से बोलिए। हाँ। और स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स के हमारे सारे भाई बहनें सारे दिन में कितनी बार मुस्कुराते हो? अरे बोलिए बोलिए, अभी तो सारे मुस्कुरा रहे सर। बहुत अच्छा। मैंने अपने विद्यार्थियों से पूछा वे कितनी बार मुस्कुराते हो? एक खड़े होकर कहता है सर 3 टाइम्स सर। सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और रात्रि का डिनर सर। अच्छा विद्यार्थी था तो मैंने कहा मेरा मजाक उड़ाते? बोला नहीं सर। फिर मैं कहा ऐसे जवाब क्यों दिए? बोले सर देखा जाए तो हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमको 3 वक्त का भोजन तो मिलता है। मैं एक बार एक ट्रेनिंग एकेडमी में गया था, इंडियन नेवल ट्रेनिंग एकेडमी में। तो जब मैंने चित्र दिखाया, जब मेरा सेशन ख़त्म हुआ तो वाइस एडमिरल साहब वहाँ बैठे थे। तो सेशन ख़त्म होने के बाद उनको बोलना था, तो वाइस एडमिरल स्टेज पर आए और मुझे देखकर कहा, डॉक्टर स्वामीनाथन आज आपके सेशन से एक परिवर्तन मैं अपने जीवन में करने वाला हूँ। तो मैंने कहा, तो सबने पूछा सर क्या करने वाले हैं आप? बोला आज तक हम ट्रेनिंग एकेडमी में ये बोलते थे अपने जवान और अपने कैडेट्स को कि एकदम गंभीर रहना, एक सैनिक मतलब चेहरे में वो दिखना चाहिए, राइट। और उनको कहते थे जो अगर मुस्कुराएगा तो उसका हम मार्क्स कम कट करते थे। कैडेट कोई मुस्कुरा ही नहीं सकता था। बोले लेकिन आज आपके सेशन से मुझे एक बात समझ में और वो परिवर्तन मैं करने वाला हूँ। और उन्होंने कहा मैं कैडेट को यही बोलूँगा कि एकेडमी में बिल्कुल मुस्कुरा नहीं सकते, लेकिन घर में जाते वक्त प्लीज़ मुस्कुरा कर जाइए। बोले ये गलती मैं आज तक इतने वर्ष तक किया, क्योंकि वही बंदा जब घर में जाता है तो वही अपना चेहरा लेकर जाता है। अंतर समझना बहुत ज़रूरत है। फील्ड में आपका क्या स्वरूप है और घर में क्या स्वरूप है, राइट। और इसलिए काम करते हैं, अपने मन को शांत करने के लिए मैं एक मंत्र बोलता हूँ, राइट। और मैं चाहूँगा आप सभी मेरे पीछे पीछे ये मंत्र बोलें, ठीक है। इंग्लिश में है, हम इंग्लिश में बोलेंगे, आपकी इंग्लिश भी सुधर जाएगी। सभी बोलिए, इफ़ आई एम हैप्पी। अरे वाह, आपकी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है। हाँ बहुत अच्छा, इंग्लिश तो बहुत अच्छा। आप थोड़ा मुस्कुरा कर बोलना, ठीक है। हाँ वेरी गुड। इफ़ आई एम हैप्पी, पीसफुल, स्टेबल, आई कैन मेक माई सेल्फ हेल्दी। यस दोस्तों, उसका हिंदी अनुवाद ये है कि अगर मैं अपने मन को शांत, स्थिर और प्रसन्न रखता हूँ, सबसे बड़ा फायदा हमारा अपना स्वास्थ्य है, हेल्थ। और हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि आपने हिंदी में कहावत सुनी होगी, जान है तो, थोड़ा जोर से बोलिए, जान है तो जहान है। एक बार हम इंडियन नेवी को प्रोग्राम कर रहे थे तो सारे कैडेट्स बैठे थे। तो जब मैंने कहा जान है तो, एक कैडेट खड़े होकर कहता सर जहाज है, और कमांडेंट बहुत खुश हुए, राइट आंसर, राइट आंसर। अब ये शरीर रूपी जहाज की हालत क्या हो गई मैं बताता हूँ। 15 या 20 वर्ष पहले अगर किसी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ना है ना, तो 3 कंडीशन बहुत ज़रूरत है। पहला कंडीशन, हमारी उम्र 40 वर्ष के ऊपर होनी चाहिए।
दूसरा कंडीशन थोड़ा मोटापा होना चाहिए, उसको ओबेसिटी कहते हैं। और तीसरा कंडीशन जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, अनुवंशी। लेकिन आज सुबह आप सबके लिए खुशखबरी ये है कि आज किसी भी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ने के लिए सिर्फ एक कंडीशन की ज़रूरत है। बताइए कौन सी कंडीशन? नहीं, स्ट्रेस वर्ड आप स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स यूज़ बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। वो तो हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों ने स्कूल में पेटेंट कर लिया है। आप मेरे बच्चों का शब्द कैसे यूज़ कर रहे हैं मैं बताता हूँ। आज किसी भी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ने के लिए सिर्फ एक कंडीशन की ज़रूरत है, और कंडीशन है आपके पास दिल होना चाहिए। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मोटा हो, पतला हो, काला हो, गोरा, किसी को भी हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक होता है तो डॉक्टर्स के पास भागते हैं, तो डॉक्टर्स वुड प्रिस्क्राइब अ बाईपास सर्जरी। व्हाट्स अ बाईपास सर्जरी? मेन रोड ब्लॉक होता है और हम लोग बाईपास रोड निकालते। लेकिन अगर हमारी जीवन शैली परिवर्तन नहीं हुई, अगर हमने अपने मन का ध्यान नहीं रखा, तनाव आता है हमारे मन में, उसका प्रभाव शरीर में होता है। इसे हम आपको यहाँ पर ध्यान करना नहीं है, ध्यान रखना है। और ध्यान रखने की विधि ब्रह्मा कुमारी पिछले 25 वर्षों में सिखा रही है, और वो टेक्निक है मेडिटेशन, ध्यान। और आपको ध्यान रखना आता है। आप अपना यूनिफॉर्म का ध्यान रखते हो, आप अपना अस्त्र शस्त्र का ध्यान रखते हो, आप अपने परिवार का ध्यान रखते हो, आप अपने बच्चों का ध्यान रखते हो, बहनें अपने पति का ध्यान रखते कि नहीं रखते? कुछ बोलती नहीं बहनें, रखते कि नहीं रखते? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत है, ध्यान रखते हैं वो। बस इस ध्यान रखने के क्रम में बहनें बस अपने मन का ध्यान रखना ज़रूरत है। और मैं आज आपको खुशखबरी देता हूँ, एक डॉक्टर होने के नाते, अगर हमने अपने मन का ध्यान रखा तो दिल की धमनियाँ जो बंद पड़ गई है वो धीरे धीरे खुलने लगेगी, विदाउट बाईपास सर्जरी, विदाउट ओपन हार्ट सर्जरी। मैं बोलूँगा तो विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मैं एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व को आपके सामने लेकर आता हूँ। अगर वो कहेंगे कि जो स्वामी भाई कह रहे हैं उस पर चिंतन ज़रूर करिएगा, तो आप ज़रूर विश्वास करेंगे। ये आध्यात्मिक व्यक्तित्व कौन है मैं आपको हिंट देता हूँ। जैसे आप इनको स्क्रीन में देखेंगे ना, आप सभी का चेहरा गुलाब की तरह खिल उठेगा। इसलिए जब वो आएंगे ज़रा जोर से तालियां बजाना। सर प्लीज़ कम सर, टुडे वी आर इन दिस ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ गुजरात सर। यस सर। स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स सर। यस सर। आ रहे हैं। वर्तमान समय में सर कहाँ इतना मुझे कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन आप उनको देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। तालियां ज़रूर बजाना। हिज एक्सेलेंसी द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत रत्न लेट डॉक्टर कलाम सर। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बताते हुए, डॉक्टर कलाम जब DRDO में थे तब उन्होंने एक रिसर्च को स्टार्ट किया। और वो रिसर्च किसके लिए था? जिसको सबसे ज़्यादा तनाव होता है, पुलिस फोर्सेस है ना, पैरामिलिट्री फोर्सेस, मिलिट्री फोर्सेस। और उनको बहुत क्लैरिटी थी कि तनाव प्रबंधन करने के लिए ध्यान ज़रूरत है, इसलिए कोई ना कोई आध्यात्मिक संस्था से जुड़ना पड़ेगा। और 1998 में DRDO जुड़ा ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से, और 2006 में देश के माननीय राष्ट्रपति होकर वो सारे विश्व के डॉक्टर्स को बहुत प्यार से समझा रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन, प्लीज़ प्रिस्क्राइब मेडिटेशन। एक 42 मिनट्स का प्रेजेंटेशन है, समय की एक मर्यादा है, इसलिए हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, लेकिन 2 मिनट डॉक्टर कलाम को हम सुन लेते हैं, फिर आगे की यात्रा में चलेंगे। Dr. APJ Medical being with us this conference. Happy to meet you all. Thank you, Chopraji, for the beautiful introduction. What you have given. You can hear me, all of you? Yes? Yes? Okay. Now, first, before starting, I want to locate who are the Dilwalas there. Dilwalas. Please lift your hand, Dilwalas. फर्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर कलाम सर ऑडियंस से पूछ रहे कि ऑडियंस में जो दिल वाले वो हाथ उठाए। कौन कौन दिल वाले बैठे जरा हाथ उठाओ। कुछ लोग इधर उधर देखकर हाथ उठा रहे, क्या हुआ? सर हाथ उठाए। सर जी अच्छा ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। किस हिसाब से दिल वाले?
हिसाब से दिल वाले? सर जी किस हिसाब से दिल वाले? आप नहीं हाथ उठाएं। हाँ, खुशी से रहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत हाँ भाई तो बोलिए। खुशी से अपना खुद रहने का प्रयास करते हैं, परिवार को खुश रखने का प्रयास करते हैं। कैंपस के सारे अधिकारी जवानों को भी हम साथ में लेके चलते हैं और इस बड़े दिन के साथ दिन हमारा अच्छे से जाए, ये सोचकर हम अपने आप को दिल वाले कहते हैं। 25 साल हो गए लेकिन आज तक दिल वाले का ऐसा डेफिनेशन नहीं मिला। थैंक यू सर, वेरी स्वीट ऑफ यू। कितना अच्छा जवाब सर ने दिया। सर आप मुंबई ज़रूर आइएगा, क्योंकि एक बार मैं अपने विद्यार्थियों से ये प्रेजेंटेशन दिखाया। मैंने पूछा कौन कौन दिल वाले? सर वो भी आपकी तरह मुस्कुराते हुए हाथ उठाए। तो मैंने यही प्रश्न पूछा किस हिसाब से दिल वाले? सर आपने तो इतना अच्छा जवाब दिया। उसमें से एक विद्यार्थी खड़े होकर कहता सर दिल वाले वो जो दुल्हनिया को लेकर जाते सर। लेकिन डॉक्टर कलाम सर दिल वाले उन पेशेंट्स को रेफर कर रहे हैं जिनकी दिल की धमनियां बंद पड़ गई थी तनाव के कारण, और जिन्होंने अपने मन पर काम किया और जिनके आर्टरीज ब्लॉक ओपन हो गए विदाउट बाईपास सर्जरी, विदाउट ओपन हार्ट सर्जरी। एक वैज्ञानिक होने के नाते उन्होंने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दी थी कि सारे डॉक्टर्स के सामने वो दिल वाले पेशेंट्स भी बैठे रहना चाहिए, सो दैट द डॉक्टर्स कैन सी फॉर देमसेल्व्स। वेरीफाई कर रहे हैं। Beautiful, very nice to meet all of you who have got beautiful heart. God bless you. तो दिल वाले वो हार्ट के पेशेंट्स थे जिनके आर्टरीज ब्लॉक ओपन हो गए। अब क्या करना है, डीआरडीओ क्या कहता है उसको हम। 3 बातें जीवन में करना बहुत ज़रूरत है दोस्तों तनाव प्रबंधन के लिए, राइट? और ये डॉक्टर कलाम सर को हमने सुना। खुशी की बात है कि वर्तमान समय के राष्ट्रपति महोदय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, और हमारा ये सौभाग्य रहा मई 2, 2025 में ब्रह्मा कुमारीज की टीम को राष्ट्रपति भवन में बुलाया गया। और आप देख सकते हैं यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय के साथ आशा दीदी जी और शिवानी बहन, और ये हमारी टीम जो है, और ये इम्पॉर्टेंट है, राइट? वैसे राष्ट्रपति भवन में कोई भी जा सकता है, हमारा और आपका सबका अधिकार है, बस थोड़ा सा प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन मैं इसलिए आपको ये फ़ोटो बता रहा हूँ कि जैसे है ना डिफेंस फोर्सेस के साथ हमने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की है, वैसे ही एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे भारत सरकार के साथ राष्ट्रपति महोदय की उपस्थिति में किया। क्यों ये हमने एमओयू किया? इस एमओयू के द्वारा हम भारत के किसी भी स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस में जाकर, कोई भी पब्लिक को जाकर मन का ध्यान कैसे रखना है हम बता सकते। क्योंकि आपको तो तनाव होता ही है, लेकिन अभी परीक्षा का समय में बच्चों को भी तनाव हो रहा है। मेथोडोलॉजी एक ही है, विधि एक ही है। तो सर जी कभी कभी हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो कुछ प्रिंसिपल यस करते, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं हमारा सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग ने भारत सरकार से मिले तो उन्होंने कहा, पूछा हमसे आप चाहते क्या हो? हमने कहा सर हमको एक एमओयू साइन करके दीजिए, एक लाइसेंस दीजिएगा। और खुशी की बात है इसमें हम निस्वार्थ करते, इसमें कोई फीस की बात नहीं है, राइट? और ये देखिए, और ये वो जगह है जहाँ पर भारत रत्न का अवार्ड भी दिया जाता है, राइट? तो ये तो वर्तमान राष्ट्रपति की बात मैंने कही। 3 बातें करना बहुत ज़रूरत है। व्यायाम करना है, दूसरा भोजन का ध्यान रखना है, और तीसरा मेडिटेशन करना है। व्यायाम और भोजन में 1-1 मिनट के लिए लूँगा, मेडिटेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आज हमारी अस्मिता बहन आपको है ना मेडिटेशन कैसे करना है वो भी आपको बताएंगे, ठीक है? सबसे पहले व्यायाम करना ज़रूरत है, फिजिकल एक्सरसाइज। और आजकल लोग बड़े हेल्थ कॉन्शियस हो गए, सुबह उठते साथ वॉकिंग करते, जॉगिंग करते, योगासन करते, प्राणायाम करते। हमारा स्टडी कहता है वॉकिंग तो कर रहे हो, लेकिन किस मानसिक अवस्था के साथ वॉकिंग कर रहे हो? वॉकिंग कर रहे हैं लेकिन बहुत गुस्से से कर रहे हैं, तो 50 वर्ष में जो हार्ट अटैक होने वाला वो 40 वर्ष में आएगा। इसलिए जो भी एक्सरसाइज करे उसको बहुत खुशी से करे। अनिल सर आप तो खुश रहते हो, दिल वाले हो। यहाँ के लोग जब पीटी ड्रिल करते हैं तो उनका चेहरा कैसा होता है? नहीं रहने दीजिए, हम माइक में कैसे बोले। राइट, यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक काम करते हैं, आज मैं आपको 1 मिनट का एक्सरसाइज बताता हूँ, ठीक है? आप लोग यहाँ पीटी ड्रिल विल करते ही होंगे, घर में जाकर बच्चों को एक्सरसाइज बताना, ठीक है? 1 मिनट का एक्सरसाइज। सभी थोड़ा सीधे बैठे, अपने जहाज़ को थोड़े सीधे बिठाइए। कुछ लोग का जहाज़ इधर उधर डोल रहा है।
और आपका जहाज बहुत महत्वपूर्ण जहाज है। एक भाई आ जाएंगे, कोई भाई हैं क्या? ब्रदर आप आ जाएंगे? कोई भाई फ्री हैं क्या मेरे को ये माइक पकड़ने के लिए? राइट, कौन आएंगे? हाँ भाई जी आप आ जाइए। नहीं इट्स ओके ब्रदर। हाँ थैंक यू। चलो, क्या नाम है भाई जी आपका? मितेश। मितेश, कितने बजे सुबह आकर ये सारा सेट किया? 6 बजे आए थे। 6 बजे। हाँ भाई, इनके लिए तालियां बजाइए यार। आपने हमारे अस्त्र शस्त्र तैयार करके रखे। आप मितेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब एक्सरसाइज कैसे करना? दोनों हाथ ऐसे जोड़िए, हाथ को जोड़ो, चेहरों को लगाओ। हाँ, फिर दोनों हाथ जोड़िए। हाँ बस वाइब्रेशन हो गया। अब मुस्कुराते हुए अपना चेहरा दूसरों के पास ले दिखाइए, ओम शांति बोलिए और दूसरे से पूछिए मेरा चेहरा कैसा है? इस चेहरे को लेकर मैं आज घर जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सबका चेहरा अच्छा सुंदर है ना? हाँ। ओ बहन जी हो गया, अच्छा चेहरा, सुंदर चेहरा। 10 से पूछ रही है इधर कैसा है, इधर कैसा है। ओ बहन जी बहुत अच्छा है। चलो अब एक्सरसाइज क्या करना मैं बताता हूँ। अपना बायां हाथ ऐसे रखना, पहले देख लेना। अपना इंडेक्स फिंगर लेना, इसको 3 बार टैप करना और एक शब्द कहना। पता है क्या कहेंगे दोस्तों? वाह 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 जिंदगी वाह। वाह वाह कहना। मेरे मुंबई के बच्चे सुबह उठते हाय हाय से चालू करते हैं और हाय हाय संस्कार बन जाता है। हाय मेरी किस्मत, हाय मेरी पढ़ाई, हाय मेरी परीक्षाएं। आज से हाय हाय नहीं बोलेंगे। क्या बोलोगे? चलिए सभी अपना हाथ रखें, इंडेक्स फिंगर लें, 3 बार टैप करके बोलिए वाह 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 जिंदगी वाह। अनिल सर मैक्सिमम लोग तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपके मैंने कुछ लोगों को देखा। वाह 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 जिंदगी वाह। सर आई नीड योर परमिशन सर, अगर मैंने किसी को भी देखा वाह 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 करते हुए तो बड़े प्यार मोहब्बत आदर सम्मान के साथ आपको बुलाऊंगा, वो पांचों के पांचों गुलदस्ता आपको पकड़ा दूंगा और सबके सामने करना पड़ेगा। सर कैन आई हैव योर परमिशन सर? ग्रांटेड। अनिल सर ने परमिशन दे दिया, करें। वैसे मैं किसी को बुलाने वाला नहीं हूँ, दिल आपका है, जहाज आपका, करना है तो करो नहीं तो छोड़ो। कोई ज़बरदस्ती, नो ज़बरदस्ती एट ऑल। आज़ादी का अमृत महोत्सव है, करना है तो करिए, नहीं नहीं करना मत करिए। लेकिन एक मेंटल हेल्थ डॉक्टर के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, जितना आप खुशी से करेंगे, ये क्षण जीवित हो, अगला क्षण का कोई भरोसा नहीं है। जितना आप खुशी से करेंगे ना फ्रेंड्स, आपका जो ब्रेन है ना वो रिलीज हैप्पी हार्मोन्स, एंडोर्फिन्स, एनकेफ्लिन्स। तो आप करने पर किसी पर आप मेहरबानी नहीं कर रहे हो, आप अपने जहाज का ध्यान रख रहे हो। और आपका जहाज बहुत महत्वपूर्ण है आपके इस बटालियन के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए। ठीक है, बहुत खुशी से करिएगा, लेकिन जोश के साथ होश होना चाहिए। आजू बाजू के जहाज का थोड़ा सा ध्यान रख कर करना है। सभी रखिए, बहुत खुशी से मुस्कुराते हुए करिए वाह 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 जिंदगी। सो स्वीट। अब एक काम करिए, 2 फिंगर लेकर कहिए वाह 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 मेरा परिवार वाह। करिए 3 लेकर कहेंगे वाह 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 मेरा देश वाह। करिए 4 लेकर कहेंगे वाह 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 ये प्रकृति वाह। अब दोनों हाथ जोड़कर कहेंगे वाह 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 वो परम रक्षक वाह। जोर से तालियां बजाइए। थैंक यू मितेश। अच्छा लगा? अच्छा, मैं जानना चाहता आप में से मेरे कितने दोस्त यहाँ बैठे हैं, राइट, जो चाहते हैं कि आपके घर में जो बच्चे हैं ना वो भी सुबह वाह करके उठें। ऐसे जो चाहते हैं वो जरा हाथ उठाएं। हाथ उठा लीजिए सर जी, हाथ उठाइए ना, अब अलग से बताना पड़ेगा। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। कितनी अच्छी अपेक्षा है ना। अच्छा, आप में से कितने माता पिता हैं जो चाहते हैं आपके घर में जो बच्चे हैं ना हर दिन सुबह वाह करके स्कूल कॉलेज में जाएं? वो जरा हाथ उठाएं। अरे बहन जी हाथ उठाइए ना, आप हाथ उठाते तो हम शिक्षकों को इजी हो जाता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू।
आप में से कितने माता पिता हैं जो चाहते हैं आपके घर में जो बच्चे हैं ना, जिस दिन एग्ज़ाम हो वो आकर कहें पापा बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं वाह वाह करके एग्ज़ाम हॉल में जाऊंगा, विजय होकर वाह वाह करके वापस आऊंगा। ऐसे जो चाहते हैं वो जरा हाथ उठाएं। वाह, बच्चों से कितना प्यार और मोहब्बत है ना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा लगा अनिल सर, हमारा देश का भविष्य सुरक्षित है। हाँ, अब लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। आप में से मेरे कितने दोस्त हैं जो हर दिन सुबह उठकर वाह आज मैं वो कैंप में जा रहा हूँ, SRPF में जा रहा हूँ, ऐसा सोचते, वो जरा हाथ उठाएं। क्या हुआ? कहाँ फंस गए हैं? बाप रे, कब हमको मुक्ति मिलेगी, कब हमको मोक्ष मिलेगा? अच्छा बताइए, जब आपका ये रिक्रूटमेंट हो रहा था, कितनों के घर में गृह मंत्री और मुख्यमंत्री आए थे कि हमारा स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स में भर्ती हो जाओ, गुजरात पुलिस में भर्ती हो जाओ? कितनों के घर में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री आए थे? नहीं आए थे ना? आपने अप्लाई किया ना? अच्छा, कितने लोग रिटर्न एग्जाम लिखे? आपने लिखा। कितने लोग भागे दौड़े? आपने किया। कितने लोगों ने जब भगवान से प्रार्थना की कि गुजरात पुलिस में सिलेक्शन हो जाने चाहिए? आपने किया। किसी ने आपको जबरदस्ती नहीं लेकर आए। और जब आप यहाँ पर आए तो यहाँ की ट्रेनिंग एकेडमी में आपको ट्रेनिंग दी, आपको सक्षम बनाया, राइट? इतने सारे लोग अप्लाई करते हैं, उसमें से कुछ लोग जो ये यूनिफॉर्म पहन सकते, इसका एक नाज होना चाहिए। तो एक काम करना, कल सुबह उठते ही साथ, भले आपका छोटू सोता रहे, दोनों हाथ जोड़ना। हाँ, दोनों हाथ जोड़िए सभी, है ना? बहुत खुशी से बोलना, वाह 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 मेरा स्टेट रिजर्व पुलिस वाह। बोलिए सभी। जोर से अपने लिए तालियां बजाइए। ठीक है, आप लोगों ने ये वाह वाह की एक्सरसाइज की है ना, आप और हम बहुत भाग्यशाली है। मैं आपको कुछ फोटोज दिखाता हूं। दिस इज इंडियन नेवी। जान है तो नहीं, जहां नहीं, जहाज वाली टीम है। ये सदर्न नेवल कमांड है। तो कुछ समय पहले SSW को वहाँ बुलाया गया था टू गिव अ सेशन। तो जब हम वहाँ पर गए तो हम लोग ने जब सेवा उन्होंने देखा तो वाइस एडमिरल ने उन्हें हमें घर पर बुलाया, उनके एडमिरल हाउस पर। जब वो वहाँ पे गए तो उन्होंने कहा आप लोग इतना निस्वार्थ सेवा किया, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? हमने कहा सर आज तक हम एक युद्ध पोत नहीं देखे, वॉरशिप नहीं देखे, आप हमें एक युद्ध पोत दिखा दीजिए। बोला अरे इतनी छोटी सी बात है। उन्होंने फटाफट अपने ऑफिसर्स को बुलाया और ये हमारी टीम ऑफ SSW जो है इस युद्ध पोत के सामने खड़ी है। तो हमने इस ऑफिसर से कहा इस वॉरशिप में सबसे ज़्यादा जहाँ तनाव होता है वहाँ पर आप हमको लेकर जाइए। तो इस वॉरशिप के अंदर उन्होंने एक चेंबर दिखाया, ये चेंबर है, आप इसका साइड व्यू देख सकते हैं। हमने कहा ये चेंबर क्यों रखते हैं? बोला सर इसमें हम लोग ना 4-5 लोगों को अंदर डाल देते हैं। मैंने कहा ऐसा क्यों करते हो भाई? बोला जब ये युद्ध पोत सागर में जाती है फॉर सम ऑपरेशनल रीजंस, फॉर सम मेंटेनेंस, ये लोगों को नीचे उतरना पड़ता है। तो नीचे स्थल तक जाने तक के लिए बहुत हाइड्रोलिक प्रेशर रहता है ना, सागर होता है, तो उनको एक कैप्सूल के अंदर डाला जाता है। तो कैप्सूल में अंदर डालने के पहले इस चेंबर के अंदर डालकर इसको एक्लेमेटाइजेशन करते वो, इसमें से वो ऑक्सीजन खींच लेते हैं और वो गैस भरते हैं जो उस कैप्सूल के अंदर का गैस होता है ताकि वो नीचे उतरे। हमने कहा भोजन का क्या करते हो? बोला एक छोटा सा पाइप डालते हैं, लिक्विड फूड, राइट। फिर मैंने कहा कितने दिन तक आप यहाँ इसके अंदर रखते हैं? बोला कभी 1 हफ्ता, 10 दिन, 2 हफ्ता, डिपेंड्स अपॉन द ऑपरेशन। और फिर वो ऑफिसर्स ने हमको कहा, एडमिरल साहब ने कहा स्वामी भाई को ये जगह ज़रूर दिखाना क्योंकि यहाँ पर हम शरीर का कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर सकते। यहाँ के जो लोग इसके अंदर जाते हैं उनको दिन रात समझ में नहीं आते, एक ही जगह लेटे रहते हैं दिन रात 2 हफ्ते तक। कुछ तो सोचेंगे ना, क्या सोचना है, ये ट्रेनिंग नहीं दी जाती उनको। एक कमांडो को AK-47 दे देते, कैसे चलाना ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन मन को कैसे ट्रेन करना है। अब देखिए सागर के तले से मैं विश्व के सबसे ऊंचाई की युद्ध भूमि, ये सियाचिन बैटल स्कूल है, SBS, इंडिया पाकिस्तान चाइना के संगम पर। यहाँ हम 12,000 के फुट पर खड़े हैं। जैसे मैं आपसे मिल रहा हूँ वैसे वहाँ सियाचिन स्टार्ट से हम मिल रहे हैं।
उन्होंने हमें 18,000 फुट तक लेकर गए और हमारे सैनिक और जवान 28,000 के फुट पर, विश्व का सबसे ऊंचाई का युद्ध भूमि। तो अक्सर इंटरनेशनल योगा डे में मैं लोगों से पूछता हूँ, विश्व के सबसे ऊंचाई की युद्ध भूमि में आप कौन सा व्यायाम करोगे? वॉकिंग नहीं कर सकते, जॉगिंग नहीं कर सकते, योगासन नहीं कर सकते हैं, प्राणायाम तो बिल्कुल बोलने ही नहीं। वहाँ पर अगर आपने गहरी श्वास लिया, फिर वहीं से आपको ऊपर जाना पड़ेगा। टेम्परेचर इज लो, प्रेशर इज लो। तो सागर के तले से विश्व के सबसे ऊंचाई के युद्ध भूमि में किसी भी प्रकार का व्यायाम नहीं कर सकते। नो फिजिकल एक्सरसाइज कैन बी डन। और जहाँ पे शरीर का व्यायाम नहीं कर सकते हैं, वहाँ मन का व्यायाम करना। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये मन का व्यायाम सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके घर में बच्चों के लिए। क्योंकि आज सबसे बड़ा तनाव का कारण मोबाइल फ़ोन। आपको अंदाज़ नहीं है आपके बच्चों की इस मोबाइल फ़ोन के कारण क्या हालत हो गई है। आने वाले समय पर हमारे बच्चों को नींद नहीं आएगी। नींद नहीं आएगा तो एंग्जाइटी होगा। एंग्जाइटी विल टेक इनटू डिप्रेशन एंड डिप्रेशन विल टेक आवर चिल्ड्रन टू सुसाइड्स। कितने आत्महत्या बढ़ रहे हैं ये आप पुलिस को बहुत क्लियरली पता होता है, क्योंकि मन को शांत करना हमने कभी सिखाया नहीं है। इसीलिए मेडिटेशन जो है एक टेक्निक है मन का व्यायाम। जैसे शरीर के लिए व्यायाम ज़रूरत है, मन का व्यायाम भी बहुत बहुत ज़रूरत है। तो मैं आपको मन का व्यायाम, मन को कैसे मैनेज करें वो हम दिखाते हैं। जब हम कहते हैं मेरा मन, मन अर्थात संकल्प की रचना करना, मन अर्थात भावनाओं को जनरेट करना, राइट। तो जब मैं कहता हूँ मेरा मन, तो मन को कंट्रोल करना बहुत, मन को मैनेज करना बहुत ज़रूरत है। मन का ध्यान रखेगा कौन? जैसे आप अपने अस्त्र शस्त्र का ध्यान रखते हैं, आप रखते हैं, उसी तरह जब मैं कहता हूँ मेरा मन, तो ये मैं कौन हूँ। 31 वर्ष पहले जब मैं ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय में आया तो मुझे एक स्लाइड बताया, स्वयं की पहचान। गाड़ी में जब तक ड्राइवर होता है तो गाड़ी चलता है, ड्राइवर उतरा गाड़ी रुक जाता है। उसी तरह ये शरीर एक बहुत सुंदर गाड़ी है, लेकिन इसका ड्राइवर कौन है? यहाँ से एक लाइन को ड्रॉप करिए, यहाँ से एक लाइन को ड्रॉप करिए, मीटिंग पॉइंट हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में एक पॉइंट ऑफ लाइट, जिसको आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, रूह कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। जब ये आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, इट इज कॉल्ड एज ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन अर्थात शरीर, बीइंग अर्थात उसमें रहने वाली वो चैतन्य शक्ति। एक पिस्तौल से एक व्यक्ति को आप ऊपर से नीचे कहीं पे भी मार दो, वो व्यक्ति जीवित रह सकता है। लेकिन अगर आपका एम यहाँ पर है, 100% वो बच नहीं सकता, क्योंकि वो आत्मा पावर स्टेशन इस भ्रुकुटी के बीच में, ब्रेन में। और ये जानना क्यों ज़रूरत है? क्योंकि समाज में सबसे बड़ा जो डर है वो है मृत्यु का भय, द फियर ऑफ डेथ। एक बार हम इंडियन एयरफोर्स एकेडमी में गए थे, बैंगलोर, यलंका। तो जब हम ये स्लाइड बता रहे थे तो मैंने ऑडियंस से पूछा सबसे बड़ा डर कौन सा है? सभी ने महसूस किया मृत्यु का भय। एक पायलट खड़े होकर कहता, नो सर, आई डोंट फियर डेथ, मुझे मृत्यु का भय बिल्कुल नहीं है। तो मैंने उनको देखकर कहा, मैंने कहा सर आप जो कह रहे हो ना एकदम राइट कह रहे हो, आपको आपकी मृत्यु का भय इतना नहीं होगा जितना आपको अपने परिवार और बच्चों का होगा। एम आई राइट? वो सोचने लगे। उनकी पत्नी साइड में बैठी थी, वो खड़े होकर कहती है, तुमको क्या पता, तुम तो बस वो मिग 21 में बैठकर उड़ जाते हो, लेकिन जब तक तुम नीचे नहीं उतरते हो, आपने कभी मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश की है क्या? ढिशुम ढिशुम ढिशुम, वर्ल्ड वॉर 3। किसी को भी अपनी मृत्यु का भय नहीं होता, ना आपको है ना मुझे है, बट वी सर्टनली फियर द डेथ ऑफ अ क्लोज्ड वंस। तो एक काम करना, आज जब ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा ना, जैसे ही आप घर में जाएंगे, आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर आपके बच्चे पूछेंगे, पापा आज आपका चेहरा इतना मुस्कुराता हुआ क्यों है? तो कहना, बच्चे आज ना वहाँ पर SSW का ट्रेनिंग प्रोग्राम था ना, वहाँ जाकर हमें समझ में आया कि मैं कौन हूँ। तो छोटू पूछेगा, पापा आप कौन हो? तो एक काम करना, अपना राइट हैंड ना बच्चे के सर पर रखना। आज उसको बिल्कुल डराना नहीं, बहुत प्यार से उसको देखना, फिर मुस्कुराते हुए पूछना, छोटू आपको पता आप कौन हैं? तो छोटू पूछेगा, पापा मैं कौन हूँ? हाथ रखे रहना।
वो ऊर्जा का प्रवाह होने दीजिए। फिर पूछना, बच्चे आपको पता है आप कौन है? छोटू पूछेगा, पापा बताइए ना मैं कौन हूँ। तो बहुत प्यार से बोलना। सभी बोलिए, बच्चे बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। अरे डराओ नहीं ना, छोटू को डरा देते हो। प्यार से बोलिए, बच्चे। और थोड़ा प्यार मोहब्बत भरिए, बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, आप हो तारे जमीन पर। हाँ, फिर छोटू पूछेगा, पापा आप कौन हो? तो इंग्लिश में जवाब दीजिएगा। सभी बोलिए, आई एम अ ट्विंकल ट्विंकल। आगे बोलिए, लिटिल स्टार। वो छोटू मुस्कुराएगा, पापा ये मेरे एलकेजी का सिलेबस है। जैसे कोई भी सैनिक जो होता है ना, वो बाजू का स्टार्स देखकर उसको समझ में आता है कि किस लेवल के ऑफिसर हैं। लेकिन एक अदृश्य रूहानी सितारा भ्रिकुटी के बीच में, अजय अमर अविनाशी। जितना ये युद्ध आजू बाजू न्यूज़ चल रहा है, हमको अंदाज ही नहीं है हमारे बच्चे कितना डर रहे हैं। तो हर दिन, और ये आत्मा का स्वधर्म है शांति, इसलिए हम लोग यहाँ पे ओम शांति कहते हैं। ओम मीन्स मैं आत्मा, शांत स्वरूप। ये है हमारा स्वधर्म। देह के धर्म पर कितना लड़ाई झगड़ा चल रहा है, लेकिन आत्मा के स्वधर्म में टिकना ये बहुत बहुत ज़रूरत है। अब प्रश्न उठता है कि इस पावर स्टेशन को शक्तिशाली कैसे बनाएं। उसके लिए हमारे SSW की टीम के एक बहुत सीनियर फैकल्टी अस्मिता बहन जी, हम एक बार जोर से उनका तालियां बजाकर स्वागत करें। अस्मिता बहन खुद भी एक इंजीनियर हैं और पिछले 25 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़े हैं, और ख़ास हमारे सिक्योरिटी सर्विस विंग के एक बहुत एस्टीम फैकल्टी हैं। और विशेष है ना, इतने वर्षों से है ना, बहुत स्कूल्स, कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे हमारे डिफेंस फोर्सेस में उन्होंने मेडिटेशन कराया है। तो आज मैं अस्मिता बहन से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम अपने मन को कहाँ पर लेकर जाएं और अपने इस पावर स्टेशन को किस तरह से शक्तिशाली बनाएं। वो थोड़ा सा आपको थ्योरी भी बताएंगे और मन का एक्सरसाइज भी हम कराएंगे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इसको बहुत अच्छी तरह से सुनेंगे। एक बार सभी जोर से तालियां बजाकर अस्मिता बहन का हम दिल से स्वागत करते हैं। ओवर टू यू। थैंक यू आदरणीय स्वामीनाथन भाई जी, रिस्पेक्टेड सर, और आप सभी भाई और बहनें। तो आपने समझा कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ? बताइए ज़रा, मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ, राइट? एक दिव्य चमकता हुआ सितारा हूँ। और ये दिव्य चमकता हुआ सितारा कहाँ पर है? ये मस्तक के बीच में है। ये दिव्य चमकते हुए सितारे के अंदर 3 शक्तियाँ हैं। एक है मन, जो सतत सोचता रहता है, और दूसरी शक्ति है बुद्धि, जो निर्णय लेती है। मन सोचता है और बुद्धि उसके चित्रों का निर्माण करती है। और हमारे अंदर एक तीसरी शक्ति है संस्कार, जो हम बार बार कर लेते हैं, वो हमारे संस्कारों के रूप में हमारे अंदर स्टोर हो जाते हैं। और हम सबको पता है, जब किसी भी व्यक्ति का देहांत होता है तो साथ में क्या जाता है? ज़मीन जायदाद, मकान, गाड़ी, बंगले, हमारे नज़दीकी रिश्तेदार, कौन जाते हैं साथ में? ये कुछ नहीं जाता, पर कुछ तो जाता है। वो क्या है? हाँ जी, कुछ तो जाता है। वो क्या है? हाँ जी, हमारे कर्म, जो संस्कार के रूप में हमारे अंदर स्टोर है। आप सभी स्टेट रिजर्व पुलिस में अपनी अपनी नौकरी कर रहे हैं। डेफिनेटली आप देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं इस सेवा के पीछे एक स्वार्थ भी है। यस और नो? कि मुझे अपने परिवार की देखभाल के लिए कमाई करनी है। यस और नो? यस। लेकिन ये जो कमाई आप कर रहे हैं, ये साथ
जाएगी नहीं जाएगी? बैंक बैलेंस जाएगा साथ में? ये कमाई साथ में जाने वाली नहीं है। परंतु आध्यात्मिकता हमें वो कमाई करना सिखाती है जो हमारे साथ जाती है। आध्यात्मिकता हमारे मन को ऐसा सशक्त बनाना सिखाती है, हमारी बुद्धि को इतना डिवाइन बना देती है, जो हमारे कदम केवल और केवल सही मार्ग पर ही अग्रसर होते हैं। और जहाँ कर्म अच्छे हैं, जहाँ संस्कार अच्छे हैं, तो हमारा भविष्य कैसा होगा? हमारा भविष्य भी अच्छा ही होगा। तो इसलिए अध्यात्म हमारे फ्यूचर को सिक्योर्ड बनाता है, और अध्यात्म में हम जो अच्छे कर्म, अच्छे संस्कार भर लेते हैं, वो हमारे साथ साथ चलता है। तो कौन कौन तैयार हैं अपने साथ चलने वाली कमाई करने के लिए? हाथ खड़ा करेंगे प्लीज। बहुत सुंदर। उसके लिए आवश्यक है कि रोज हम मन को उस परम शक्ति परमात्मा से जोड़ें और उनकी शक्तियों से अपने आप को एम्पावर करें। तो हमारे पास समय की सीमा है, मैं थोड़ा फास्ट आपको बताने का प्रयास करूंगी। तो ये शरीर के स्वास्थ्य के लिए चाहिए और ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए चाहिए। जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमारा ये मन एक फ्रेश ब्लॉटिंग पेपर की तरह होता है। आप जो सुनते हैं, जो देखते हैं, जो पढ़ते हैं, वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है। और आज की तारीख में हमें जो समाचार सुनने मिलता, देखने मिलता या पढ़ने मिलता, वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है? हाँ जी, सारी इन्फॉर्मेशन नेगेटिव मिलते हैं, जिसका प्रभाव ये होता है कि दिन भर में भी हमारे मन में भय रहता है, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, वहाँ ऐसे हो गया, वहाँ ऐसे हो गया। और आप जुड़े भी ऐसे डिपार्टमेंट से हैं जहाँ पर आपको एक्टिव कब होना पड़ता है? आपको एक्टिव कब होना पड़ता है? जब कहीं पर कुछ मिसहैप हो जाता है। तो कोई भी नेगेटिव समाचार जनता के पास पहुँचे, उससे पहले किसके पास पहुँचता है? उसके पहले आपके पास पहुँचता है। तो ऐसी परिस्थिति में आवश्यक है कि सुबह उठने के साथ आप अपने मन को बहुत पावरफुल पॉजिटिव फीडिंग दें। और ब्रह्मा कुमारीज में हमें सिखाया गया कि सुबह उठते ही यदि आप कुछ घंटे तक अपने मन को कुछ भी नकारात्मक, चाहे पढ़ने के ज़रिए, चाहे सुनने देखने के ज़रिए नहीं देते हैं, तो आपका मन पॉजिटिवली रिचार्ज हो जाता है और ये मन रूपी ब्लॉटिंग पेपर बिल्कुल सैचुरेट हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। उसके बाद दिन भर में आप कुछ भी समाचार सुनते हैं तो उसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। आपको ट्रेनिंग मिली है, आप उस सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, लेकिन आप अंदर भयभीत नहीं होंगे, आप अंदर चिंतित नहीं होंगे। आप बिल्कुल मानसिक रूप से स्टेबल होकर उन परिस्थितियों का सामना करते हुए, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए आप समाज की सुरक्षा में अपना पूर्ण योगदान दे सकते हैं। इसलिए लिखा कि रोजाना हमारे मन को कुछ पॉजिटिव बातें देना आवश्यक है। जैसे आप ये तो नहीं सोचते कि भी रोज खाना क्यों खाना, पता है अगर शरीर से कार्य लेना है तो शरीर को भोजन भी देना है। तो ऐसे ही मन को भी सकारात्मक भोजन 10 दिन में एक बार, 20 दिन में एक बार नहीं। अब ये प्रोग्राम हो रहा है, आपको डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव फीडिंग मिल रहा है, लेकिन ये आपको रोज मानसिक रूप से सशक्त रहने के लिए मदद शायद न भी कर सके। लेकिन यदि आप रोज कुछ पॉजिटिव सोचेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे तो क्या होगा? रोज आपका मन शक्तिशाली रहेगा। पॉजिटिव सोचने की एक आदत डाल लेनी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेडिटेशन। जैसे सुबह सुबह हम अपने मोबाइल को चार्ज कर लेते हैं ताकि दिन भर हम अपने मोबाइल का उपयोग कर सकें, तो ऐसे ही मन को चार्ज करने का समय कौन सा है? मन को चार्ज करने का समय है मॉर्निंग, एंड उसमें भी इम्पॉर्टेंट है अर्ली मॉर्निंग। यदि आप सुबह 4 बजे उठकर ध्यान कर सकें देन दैट इज द बेस्ट।
आप कहेंगे दीदी इतना सुबह तो हम क्या ही उठे, हमारे तो सोने का ही ठिकाना नहीं होता। आई डू एग्री। लेकिन आप अपने ड्यूटी से फ्री होकर सोते हैं, उठते हैं, आपका जो उठने का समय है उससे 15 मिनट पहले उठ सकते हैं? पॉसिबल? और वो 15 मिनट समय किसके लिए होगा? वो आपके परिवार के लिए नहीं है, वो गुजरात स्टेट के लिए नहीं है, वो 15 मिनट समय सिर्फ और सिर्फ आपके अपने लिए होगा। और वो 15 मिनट में क्या करना है उसे हम थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो पहली बात, आप मेडिटेशन करेंगे सुबह उठते ही 10 से 15 मिनट। राजी हैं? किस लिए? किस लिए करेंगे? अपने मन रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, रात को सोने से पहले, आपकी रात कब भी होती हो, क्योंकि मुझे पता है कई बार आपकी रात सुबह 2 बजे होती है, कई बार आपकी रात सुबह 6 बजे होती है, पर जब कभी भी आप सोने जाते हैं, सोने से पहले 5 मिनट ध्यान ज़रूर करें। जो कुछ भी दिन भर में हुआ, जो भी बातें आपके सामने आई, कभी इरिटेशन की बात आई, कभी फ्रस्ट्रेशन की बात आई, उसे ज़रूर वाइंड अप करें। कुछ गलती हो गई, कुछ भला बुरा किसी से कह दिया, कुछ हमने कर लिया जो हमने नहीं करना चाहिए था, तो उसके लिए भगवान से माफ़ी ज़रूर मांग ले। और यदि वो व्यक्ति हमारे आसपास साथ साथ है तो हो सके तो उनसे भी मांग ले। क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? इससे हमारा मन हल्का हो जाएगा और हमें नींद अच्छी आएगी। ये परमात्मा ने हमें समझाया, जो व्यक्ति अपना हाल समाचार भगवान को सुनाकर, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगकर, अपने मन को खाली करके सोते हैं, उन्हें कभी भी नींद की गोली लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कर सकते हैं सोने से पहले 5 मिनट जी। नेक्स्ट, दिन भर में बीच बीच में लगभग 1 घंटे में 1 मिनट। सर इतना टाइम होता है आपके पास? घंटे में 1 मिनट निकाल सकते हैं? तो आई बिलीव सर निकाल सकते हैं, मतलब आप भी निकाल सकते हैं। और उसमें करना क्या है? ट्रैफिक कंट्रोल। जैसे ट्रैफिक पोस्ट पे जो ट्रैफिक पुलिस खड़ा है, उसकी ड्यूटी क्या होती है? एक तरफ की ट्रैफिक को अलाउ करना, दूसरी तरफ की ट्रैफिक को रोकना, फिर इस तरफ की ट्रैफिक को अलाउ करना, इस तरफ की ट्रैफिक को रोकना, सो दैट एक्सीडेंट नहीं हो जाए। बट मेरा आपसे प्रश्न है, यहाँ पर मन में जो विचारों की ट्रैफिक चल रही है उसका क्या? आपको आश्चर्य होगा जानकर, एक साधारण व्यक्ति 1 मिनट में 25 से 30 विचार उत्पन्न करता है। आप हिसाब लगाएं तो एक दिन में 40,000 से भी ज़्यादा थॉट्स, और वही थॉट्स हमारे सारे परेशानियों का मूल कारण है। और ब्रह्मा कुमारी इसमें हमें सिखाया जाता अपने विचारों का नियंत्रण। एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे मेरे साथ? हाथ ऊपर करिए, राइट हैंड। मैं जब आपको कुछ पॉजिटिव बोलूं, तब आप बड़े प्यार से अपना हाथ सिर से टच करते हुए कहिएगा तथास्तु। इज इट क्लियर? कुछ भी पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलूं तो बड़े प्यार से अपना हाथ सिर से टच करके क्या बोलेंगे? तथास्तु। तो करें, चलिए। मैं शांत हूँ, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा SRPF बहुत अच्छा है, स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स, मेरा SRPF बहुत अच्छा है, मैं धनवान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं गुणवान हूँ, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरी पत्नी अच्छी नहीं है। क्या हो गया भाई? बहुतों ने उसमें भी तथास्तु कर लिया।
हमें इसी बात की अवेयरनेस रखनी है। घंटे में 1 मिनट इसी के लिए हमें स्पेंड करना है कि हमें अपने मन के विचारों पर गौर करना है। पॉजिटिव चले, नेसेसरी चले तो ग्रीन सिग्नल, वेस्ट चले, नेगेटिव चले तो रेड सिग्नल। अप्लाई अ ब्रेक और तुरंत अप्लाई करें और हाथों हाथ अपने मन के विचारों की गति को बदल दीजिए। दिस इज वॉट वी आर टॉट इन मेडिटेशन। जब कंटिन्यूस पॉजिटिव थॉट्स हम अपने मन में क्रिएट करते हैं, उसका रिजल्ट ये होता है कि हमारा मन एम्पावर्ड हो जाता है। और जैसे ही इस मन को उस परम शक्ति के साथ जोड़ते हैं, परमात्मा के साथ, ईश्वर के साथ, जो कि सर्व शक्तियों का अनंत स्रोत है, तो वैसे ही हमारे मन के अंदर वो सारी शक्तियों का प्रवाह शुरू हो जाता है। बिकॉज विज्ञान का एक सिद्धांत है, एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मैं यदि आपसे पूछूं कि आप भगवान को मानते हैं, तो आई एम श्योर सबके हाथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन मेरा अगला प्रश्न है कि क्या आप भगवान को जानते हैं? जो जानते हैं वो हाथ खड़ा करेंगे प्लीज। मानते तो सब है, पर जानते नहीं है। तो जब जानते नहीं है तो जुड़ेंगे कैसे? जब जानते नहीं है तो उनसे आपकी बैटरी चार्ज होगी कैसे? तो इसलिए परमात्मा को जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कई बार जब हम आत्मा परमात्मा की बातें करते हैं आज के इस वैज्ञानिक युग में, तो लोग कहते पता नहीं कहाँ दीदी आउटडेटेड बातें करने लगी हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आत्मा परमात्मा की बातें कल भी इम्पोर्टेंट थी, आज भी इम्पोर्टेंट है और कल भी इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि ये मूल बातें हैं। एक गाय का बच्चा कैसा होगा? गाय की तरह। एक पंछी का बच्चा पंछी की तरह। मनुष्य का बच्चा मनुष्य की तरह। और ये आप हम सभी समझ रहे हैं कि हम सब आत्माएं वो परमात्मा पिता की संतान है। यस, सभी मानते हैं कि हम सभी आत्माएं उस परमात्मा की संतान हैं। इसीलिए हमारे भारत में कहा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, क्योंकि एक कॉमन पिता है। तो जब हम आत्माएं ज्योति बिंदु हैं, तो हमारे पिता कैसे होंगे? कैसे होंगे? ही हैज़ टू बी अ पॉइंट ऑफ लाइट ओनली। उनका कोई दूसरा रूप हो नहीं सकता। तो जब हम मेडिटेट करते हैं, अपने ध्यान को थोड़ी देर के लिए बाहर से हटाकर भीतर की ओर ले जाते हैं, अपने मस्तक के बीच एकाग्र करते हैं और अपने उस चमकीले ज्योति बिंदु स्वरूप को महसूस करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि आत्मा देखने की चीज़ नहीं है, वी कैन जस्ट रियलाइज इट। परमात्मा देखने की चीज़ नहीं है, हम उन्हें अनुभव कर सकते हैं। तो दूसरा स्टेप होता है, हम अपने मन को कुछ देर के लिए यहाँ से हटाकर ले जाते हैं उस परम शक्ति के पास, परमात्मा के पास, और परमात्मा को विजुअलाइज करते हैं कि जैसे मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, वैसे वो भी पॉइंट ऑफ लाइट है। और फिर हम अपने ध्यान को उस परम शक्ति परमात्मा पर एकाग्र कर देते हैं। तो मेरा एक और प्रश्न है कि वो परमात्मा परम ज्योति है कहाँ? क्योंकि उनसे कुछ लेने के लिए आपको उनके पास जाना पड़ेगा। यस और नो? यस और नो? जाएंगे तभी जब आपको उनका ठिकाना पता होगा। तो मैं शॉर्ट में बताती हूँ, ये जैसा हमें नीला आसमान दिखाई देता है, ऐसे ही नीले आसमान से ऊपर एक सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया है, जिसे ब्रह्मलोक कहते हैं, जिसे परलोक कहते हैं, जिसे परमधाम कहते हैं। और हमारे परमात्मा पिता
उस ब्रह्म लोक के निवासी हैं। इसीलिए जब कभी भी हमने भगवान कहा, हमारी आंखें किधर गई? ऊपर। इशारा किस तरफ किया? ऊपर। कोई बात समझ में नहीं आती तो हम क्या कहते? अरे हमें नहीं पता, ऊपर वाला जानता है। क्योंकि यही सत्य है कि वो कहीं ऊपर है। लेकिन हमारे पास क्लैरिटी नहीं थी, तो वो क्लैरिटी हमें ब्रह्मा कुमारीज में प्राप्त हुआ कि नीले आसमान से पार वो सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में परमात्मा है। तो हम मन बुद्धि को थोड़ी देर के लिए वहाँ ले जाते हैं, उनके ज्योति बिंदु स्वरूप पे फोकस करते हैं, उनसे शक्तियाँ भरते हैं, बैटरी चार्ज करते हैं, एंड देन बैक टू मिडल ऑफ फोरहेड, रेडी टू सर्व द नेशन। तो करेंगे सभी प्रैक्टिस। आपको मैं यदि कहूँ आपका घर, तो कितना टाइम लगेगा पहुँचने में? मन से पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, एक सेकेंड भी नहीं लगेगा। घर कहाँ? घर का चित्र आ गया और आप अपने आप को घर में विजुअलाइज कर लेते हो। ऐसे ही हमें पहुँचना है आत्मा के घर। आत्मा का घर कौन सा? जो हमारे पिता परमात्मा का घर। तो हम विजुअलाइज करेंगे यहाँ, फिर विजुअलाइज करेंगे अपने को वहाँ, फिर अपने में पावर भर के पावरफुल बन के वापस आ जाएंगे, है ना। तो एक छोटी सी यात्रा है, अंतर जगत की यात्रा है। तो आशा करती हूँ आप सभी बहुत फोकस्ड होकर बैठेंगे। चलिए, कमर सीधी। इट्स ओके भैया। हाँ। की दुनिया में, और स्वयं को भी ज्योति विजुअलाइज करना है और परमात्मा को भी ज्योति ही विजुअलाइज करना है। कमर सीधी। आप क्रॉस लेग ना बैठे तो अच्छा है, दोनों पैरों को आराम से जमीन पे टिकाए रखिए। सीधे होकर बैठेंगे प्लीज। लंबी गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ें। धीरे धीरे अपने ध्यान को पूरी तरह से स्वयं के ऊपर ले आएं। देखिए स्वयं को, 5.5-6 फीट का ये शरीर, अपना पूरा ध्यान पैरों की उंगलियों पर फोकस करते हुए रिलैक्स करें। पूरे शरीर को ढीला रिलैक्स करते जाएं। पैरों को भी रिलैक्स, थाई मसल्स को भी रिलैक्स करें। महसूस करें धीरे धीरे पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है। अब मेरा फोकस मेरे चेहरे पर है। देखिए अपना चेहरा जैसा आप आईने में देखते हैं। अब मेरा ध्यान और एकाग्र होता जा रहा है। मस्तक के बीच जहाँ तिलक लगाते हैं, देखिए स्वयं को दोनों नैनों के बीच एक दिव्य चमकता हुआ सितारा, आसमान के सितारे की तरह मैं आत्मा ज्योति बिंदु चमक रही हूँ। अपने उस चमकीले स्वरूप को महसूस करें। मेरे अंदर असीम शक्तियाँ हैं, असीम शांति है। मैं प्रकाश का पुंज, उस परम ज्योति परमात्मा की संतान हूँ।
और मेरा ध्यान कुछ समय के लिए उस परम ज्योति पर केंद्रित हो जाती है। मन को ले चले इस हॉल से ऊपर, नीले आसमान से पार। विजुअलाइज करें एक सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया। सूर्य के समान चमकते हुए परम ज्योति को देखिए अपनी बुद्धि रूपी नेत्र से और महसूस करें ज्योति के उस पुंज से सफेद प्रकाश की किरणें मुझ पर पड़ रही है और वो किरणें मुझ में समा रही है और धीरे धीरे मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। मेरा अंतर्मन शांत हो गया है, एकदम शांत। महसूस करें अपने भीतर की उस शांति को। परमात्मा का आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर है। अपना सारा बोझ, सारी चिंताएं मैं उन्हें समर्पित करती हूँ। मेरे साथ प्रतिपल भगवान है, ये विश्वास है मुझे और इस विश्वास में शक्ति है। मैं निर्भय हूँ और निश्चिंत हूँ। अब धीरे धीरे आत्मा को शक्तिशाली महसूस करते हुए मैं पुनः विजुअलाइज करती हूँ अपने आप को मस्तक के बीच, फुल ऑफ एनर्जी। मस्तक के बीच चमकती हुई ज्योति बिंदु आत्मा से सफेद प्रकाश की किरणें निकलकर पूरे मस्तिष्क में फैल रही है। एक एक कोशिका चार्ज हो रही है। देखिए अपना मस्तिष्क बिल्कुल तेजोमय। अब ये प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है। फील द एनर्जी। अब मैं शक्तिशाली तन और मन के साथ अपनी सारी ड्यूटी करने के लिए तैयार हूँ। एक बहुत अच्छे से एहसास के साथ धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। ओम शांति। तो मेरा पुनः निवेदन रहेगा, अपने मानसिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिदिन सुबह, रात को सोने से पहले और दिन भर में बीच बीच में 1 मिनट समय अपने लिए अवश्य ही निकालें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
આદરણીય સ્વામિનાથનભાઈજીએ આપણને બતાવી, ફક્ત ખુશ રહેવાની વિધિ નહીં બતાવી, પરંતુ આપણને સર્વને ખુશ પણ કરી નાખ્યા. એ બદલ આદરણીય સ્વામિનાથનભાઈજીનો ખૂબ ખૂબ દિલથી ધન્યવાદ, આભાર. સાથે સાથે થોડા સમય માટે પણ આપણને માનસિક શાંતિની અનુભૂતિ કરાવી એવા આદરણીય અસ્મિતાબેનનો પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. હવે આજના કાર્યક્રમને અનુરૂપ 2 શબ્દ શુભેચ્છાના પ્રગટ કરશે આપણા ડીવાયએસપી સાહેબ અનિલ સર. SRPF ग्रुप 11 के पटांगण में आज ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की अध्यापक से वरासा सब जॉइंट इंचार्ज BK तृप्तिबेन और आज के मोटिवेशनल स्पीकर EV स्वामीनाथन साहब, अस्मिताबेन और पूरे ब्रह्मा कुमारी स्वाध्याय परिवार के सभ्य, इंस्पेक्टर साहिबान और प्यारे जवानों, SRPF ग्रुप 11 के कमांडेंट श्री KV परीख साहब अपने व्यस्त कार्यक्रम की वजह से नहीं आ पाए, लेकिन आज का ये कार्यक्रम मेडिटेशन, हम सब पुलिस का एक रोल है कि जिम्मेवारियां और जिम्मेवारियों के बीच सभी चीज़ों को साथ में लेके चलना. अपने आप को फिट रखने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, लेकिन मेडिटेशन हम नहीं करते. इसके लिए मेडिटेशन की आवश्यकता रहती है और अपने आप को एक ऐसा फील करना कि कैसे हमको रहना है, किसका ख्याल कैसे रखना है, वो सब श्री स्वामीनाथन साहब ने हमको बहुत आसान तरीके से सिखाया. मैं पूरी ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सभी सभ्यों का आभार व्यक्त करता हूँ. और हम सब जानते हैं कि ये स्वाध्यायी जो सभ्य हैं वो भी हमारी तरह ही पहले बचपन से लेके आज तक उन्होंने अभ्यास किया है और अपनी पढ़ाई की डिग्रियां ली है, और उसके बाद आगे बढ़ के अपने आप को कैसे रखना है, दूसरे का कैसा ख्याल रखना है, उसके बारे में सख्ती अध्ययन किया है. ये सब्जेक्ट बहुत गहन है और पुलिस के बारे में या मेरे हमारा जो कार्यक्रम रहता है, ड्यूटी शेड्यूल रहते हैं, पुलिस के जिम्मेवारी रहता है, उसके बारे में तो मैं हमेशा बताते रहता हूँ, लेकिन हम अपने लिए कुछ नहीं करते. तो ऐसे कार्यक्रम से हमें बहुत कुछ सिखलाई मिलती हैं. विनय सर हैं, डीवाईएसपी साहब जो भी आए हैं, आप उनका तेज चेहरे को देखिए, स्वामीनाथन साहब के चेहरे को देखिए, सभी सज्जाई परिवार के सभ्यों के चेहरे को देखिए, उनके तेज को देखिए. 25 साल के लड़के जैसा स्वामीनाथन साहब का तेज, और अस्मिता बहन ने जो बातें की, अपने आप को एक आत्मा परमात्मा से, जो अपने इष्ट देव को जो आप मानते हैं उसके साथ एक मिलाप करवाया. पॉजिटिव एनर्जीज़ को कैसे लेना है, हमारे चारों तरफ काफ़ी एनर्जीज रहती है, हमको उसमें से पॉजिटिव एनर्जीज़ को कैसे लेना है, अपने आप को थोड़ा स्थिर रख के पुलिस को कैसे काम करना चाहिए, दिन भर रहना चाहिए, वो सब के बारे में बताया. बहुत अच्छी जानकारी दी. तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे विषय से पर विषय है, फिर भी ये आध्यात्मिक विषय के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमको अपने आप फिट रखने के लिए, तैयार रखने के लिए जो कुछ थोड़ा बहुत सीखने जानने को यहाँ मिला है, उसको हम अपने जीवन में लाएंगे, अपने लिए लाएंगे, परिवार के लिए. कुछ एक चीज़ अपना अनुभव अपने आप ऐसे होता है, बचपन से लेके आज तक हम रहते आए हैं और अपने अनुभव से प्राप्त होता है.
और उसमें अनुभव के अंदर ही पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज़ को हमने कैसे ग्रहण किया और क्या लेना चाहिए। अस्मिता बहन ने भी बात की, वो ट्रैफिक के बारे में बात किया। काफ़ी दिमाग के अंदर एक ऐसा मिक्सअप रहता है कि कौन से काम को किस तरह से किया जाए, उसके बारे में भी हमको ज्ञान समझण नहीं होती है। कई बार पॉजिटिव एनर्जीज़ को हम ग्रहण करना होता है, वो नहीं करते, नेगेटिव एनर्जीज़ को लेके चलते रहते हैं, तो हमको पता नहीं होता कि क्या करना चाहिए। लेकिन आप अपनी शक्ति से थोड़ा सा ध्यान करके अपने आप को सही दिशा में ले जा सके, तो ऐसे आध्यात्मिक कार्यक्रम की वजह से और आपने यहाँ वैश्विक फलक पे आपने अपना योगदान दिया है। ये छोटा सा कार्यक्रम है, ये मैं मानता हूँ। ये जो प्रेजेंटेशन दिया DRDO के बारे में, सभी फोर्सेस के साथ रह के आपने बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं। ब्रह्मा कुमारीज़ के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन अपना मन ईश्वर के साथ जुड़े रहना, कि कोई भी इष्ट देव हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म का हो, लेकिन उसके साथ जुड़े रहने के लिए हमको अपने आप हमेशा ऐसी आध्यात्मिक प्रवृत्ति से हमेशा जुड़ा रहना चाहिए। श्री स्वामीनाथन साहब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मुझे ऐसा नहीं लगता था कि ऐसे जगह पे मैं ऐसा कार्यक्रम कर पाऊँगा, लेकिन ऐसा सेटअप कर दिया, ऐसा माहौल बना दिया कि हम कुछ अपने दिमाग से ऐसा कुछ सोचने के लिए भी मजबूर हो गए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं। वो भी अपने आप के अंदर एक सोच आती है। न्यायालय अपना मन है, ये भी एक ऐसा लगा कि दिमाग के अंदर मैं ही खुद, मैंने क्या बुरा किया है, मैंने क्या अच्छा किया है, उसका भी ज्ञान अंदर अंदर होता रहता है। तो ये तो एक सच्चा न्यायालय है अपना, और हमको अच्छे कर्म करना चाहिए, बच्चों के लिए भी, परिवार के लिए भी, देश के लिए और पुलिस के अपने साथी भाइयों के लिए भी। साथ आचार व्यवहार, वाणी, वर्तन, बहुत कुछ बातें सिखाई। तो मैं स्वामीनाथन साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे साथी पुलिस की सेवा में जो हमारे परिवार के सभ्य थे, हम आज भी उनको हमारे सभ्य मानते हैं, से विनय सर को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए। मैं हमारा 850 का परिवार पुलिस फोर्स के मेंबर हैं और परिवार के 4000 सदस्य हैं। तो कोई थोड़ा बड़ा सा हम परिवार के साथ ऐसा आयोजन करने के लिए आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसा कोई कार्यक्रम हो कि जिसमें हमारे परिवार के सदस्य भी सम्मिलित हो, उनको भी ऐसे कार्यक्रमों का लाभ मिले। थैंक यू सो मच। मैं ग्रुप कमांडेंट श्री KV परीख साहब की ओर से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद। આદરણીય અનિલ સાહેબ, આજે જે આ વિશેષ કાર્યક્રમનું સફળ આયોજન થયેલ છે એની અંદર પરીખ સર તેમજ અનિલ સરનો ખૂબ ખૂબ મોટો ફાળો છે, અને આ સરસ રીતે કાર્યક્રમ એરેન્જમેન્ટ કર્યું એ બદલ બ્રહ્માકુમારી સંસ્થા તરફથી પણ આપનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અનિલ સર અને પરીખ સરની એક ઈચ્છા છે, હું આશા રાખું છું વહેલી તકે એ ઈચ્છા પૂર્ણ થાય. સર્વ જવાનોને બ્રહ્માકુમારી સંસ્થાની અંદર એક વખત બોલાવવા છે, મતલબ લાવવા છે. તો આપ સર્વ જ્યારે પણ સર કહે તો અવશ્ય પધારશો. એ સિવાય બ્રહ્માકુમારી સંસ્થાની અંદર રાજયોગ મેડિટેશન કરાવવામાં આવે છે. આપ એક વખત આપના અનુકૂળ સમયે ભવાની કોમ્પ્લેક્સની અંદર બ્રહ્માકુમારી સંસ્થા આવેલ છે, એની મુલાકાત લેશો અને રાજયોગ મેડિટેશનનો લાભ પણ લઈ શકો છો. હવે આદરણીય અનિલ સાહેબને સોગાત અર્પિત કરશે આદરણીય સ્વામીનાથનભાઈજી, તેમજ પ્રસાદ આપશે આદરણીય બ્રહ્માકુમારી તૃપ્તિબેન. આપણે સૌ કરતલ ધ્વનિથી વધાવી લઈએ. ખૂબ ખૂબ દિલથી ધન્યવાદ આદરણીય સાહેબનો.
16 से 20 अप्रैल तक ज्ञान सरोवर में सिक्योरिटी सर्विस विंग का नेशनल, माउंट आबू ज्ञान सरोवर में सिक्योरिटी सर्विस विंग का नेशनल कॉन्फ्रेंस है। तो उसके लिए सर भी सादर आमंत्रित थे और आप सभी भी सादर आमंत्रित थे। आपको जिस किसी को भी जाना हो तो आप दीदी से संपर्क करके अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लीजिए। આદરણીય ગુરુદેવ આપ સર્વને પરમાત્મા વરદાન આપશે. દિવ્ય સાધન